Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 6 of software design and architecture. Now our UML part C section is starting, which is divided into two lectures. The first half section of part C will be discussed in lecture number 6 and the remaining half section will be discussed in lecture 7. In these two lectures we will be focusing on some real world case study to understand the notion behind the UML, Unified Modeling Language. So, students, before we start our today's lecture discussion, I would like to give you a little bit recap about our last lecture. So, students, what we discussed in our last lecture, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? Actually, we see the different UML building blocks in which we see the three broader categories: things, relationships, and diagrams. And then we discuss the first building block, the things, under four different headings: structural things, behavioral things, grouping things, and annotational things. After this we see the relationships. We see different kinds of relationships like dependency, association, generalization, and realization. And then we discuss the different aspects of structural diagram as well as the behavioral diagram. And then we see the notion of class diagram, and we also discuss different UML notations for relationships on class diagram, where we see the association, generalization, and specialization, aggregation, and composition, which are basically the two types of association. And then we see the different types of diagram. And now let's move towards the over today's lecture discussion. Now our today's lecture will be based on some real world case study. We are taking the automated teller machine or auto teller machine, जिसको हम ATM भी कहते हैं. So let's students, first we will discuss the design specifications of the ATM machine. Let's first we will try to understand this case study, what is actually going behind this case study. let's start the our let's start the understanding of our case study. सो हेयर इज़ द केस स्टडी. हमारे पास एटीएम की केस स्टडी है जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस कि ये केस स्टडी है क्या. सो हाउ वी विल गोइंग ऑन दिस लेक्चर. हम इस लेक्चर में कैसे मूव ऑन करेंगे. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी with specific software design specification oriented concepts, and then we will utilize the UML based concepts to provide a modeling of this ATM example. So students, what is written in this case study. So first of all, all of you should understand the logic behind the ATM, what is actually going on there. So let's start. It is saying that हमारे पास we have a bank has a several thousands of ATM machines which are located on different cities via wide area network with a central server, and each ATM machine has a card reader where the card will be reading, and a cash dispenser where actually the cash is placed, and a keyboard display where the user usually inputs to the ATM, and a receipt printer where the user gets the receipts after some specific transaction. By using the ATM machine, a customer what can do here is a functional requirement. It can perform a withdraw cash and from either checking or saving accounts, which are basically two types of account. It can be a checking account or can be a saving account, or a customer can query the balance of an account. तो कस्टमर क्या कर सकता है, एटीएम मशीन के अंदर एक कार्ड रीडर होगा, कैश डिस्पेंसर होगा जिसे हम कैश निकालते हैं, इनपुट करने के लिए कोई कीबोर्ड डिस्प्ले होगा, और एक रिसिप्ट प्रिंटर होगा जो हमारे ट्रांजैक्शन के बाद हमें रिसिप्ट जनरेट की जाती है. इस एटीएम मशीन को यूज़ करते हुए कस्टमर क्या कर सकता है, फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं. विदड्रॉ मनी कर सकता है या विदड्रॉ कैश कर सकता है दो तरह के अकाउंट से, या उसका अकाउंट चेकिंग अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा, और या करंट अकाउंट होगा. तो और क्वेरी बैलेंस कर सकता है उस अकाउंट से कि उसका करंटली बैलेंस क्या है, या वो फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन अकाउंट टू एन अदर अकाउंट. बेसिकली दीज आर थ्री फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. So a transaction is normally started or initiated when a customer will inserts an ATM card into the card reader. हमारी ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट होगी, इनिशिएट होगी, जब कस्टमर अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करेगा कार्ड रीडर के अंदर. सो
the magnetic strip on the back of the ATM card are showing the card number, where the start date and the expiry date of the card is written. तो हमारे पास ईच कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप बैक के ऊपर लगी होती है, जो एटीएम कार्ड के किसी नंबर के साथ कोई नंबर भी डिनोट कर रहा होता है, और उस कार्ड की स्टार्टिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट मेंशन होती है. सो वी आर अज्यूमिंग ओवर इज डैट ओवर कार्ड इज़ रिकोगनाइज्ड, हमारा कार्ड रिकोगनाइज हो गया है. द सिस्टम वैलिडेट्स द एटीएम कार्ड, जो हमारा सिस्टम एटीएम कार्ड को वैलिडेट कर रहा है थ्रू द बाय चेकिंग एक्सपायरी डेट, अदर इट्स एक्सपायरी इज़ स्टिल अवेलेबल और नॉट, कि हमारा कार्ड की एक्सपायरी डेट अभी है या ये एक्सपायर हो चुका है. एंड देन द यूज़र विल एंटर हिज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. आफ्टर द एक्सपायरी डेट वेरिफिकेशन इज डन, द यूज़र विल बी आस्क्ड टू एंटर हिज और हर PIN or personal identification number. If this PIN number match the PIN maintained by the system, then the card is not then what happens, the validation process will be completed. And noted here is that the system will also check the card is not stolen or not lost or stolen. तो हमारे पास क्या होगा, जो एटीएम हमारे पास, हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है उसने एटीएम कार्ड को वैलिडेट किया थ्रू एक्सपायरी डेट चेकिंग, और वो अगर उसकी एक्सपायरी डेट पास नहीं की, देन सिस्टम उससे पिन कार्ड या पिन नंबर या पासवर्ड पूछेगा, जो कि सिस्टम ने पिन खुद के पास मेंटेन की है, और उसको मैच करेगा कि आइदर पिन या पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं. और वो ये भी देखेगा कि जो कार्ड है इसकी कोई स्टोलन या चोरी तो नहीं हो चुका, या इसकी कोई कंप्लेंट तो नहीं है. देन आफ्टर दिस काइंड ऑफ वैलिडिटी चेक्स, द कस्टमर इज़ अलाउड 3 अटैम्प्ट्स टू एंटर द करेक्ट पिन. अगर कस्टमर को यहाँ पर अलाउ किया जाता है कि वो 3 बार करेक्ट पिन एंटर कर सके. फर्स्ट वन, अगर पहली अटैम्प्ट में रॉन्ग पिन एंटर कर दी, तो ही और शी विल बी गिवन अ नेक्स्ट अटैम्प्ट, द अटैम्प्ट नंबर 2. इफ़ ही और शी अगेन एंटर द रॉन्ग पिन नंबर, he or she will give the last one attempt, which is the third one. If in this case the customer also entered the wrong pin, so what happens with the card, the card will be seized or confiscated. कार्ड जो है उसको सीज कर लिया जाएगा एटीएम मशीन की तरफ से, या उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा अगर थर्ड अटैम्प्ट में भी रॉन्ग पासवर्ड को एंटर किया जाए. सो we see that cards have been reported lost or stolen are also confiscated or seized. अगर तो कार्ड चोरी हुआ उसकी कार्ड पहले से चोरी हो चुका हो या उसकी कोई कंप्लेंट आई हुई हो, तो वो भी कार्ड एटीएम की तरफ से जब्त कर लिया जाएगा, कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा, सीज्ड कर लिया जाएगा. So let's see the next perspective of this case study is if the pin is validated satisfactorily. अगर तो पिन हमारी वैलिडेट हो गई है, now the customer is prompted for 3 type of transactions. The first one is withdraw, पैसे निकाल सकता है, query for a balance कर सकता है, या ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. बिफोर विदड्रॉ ट्रांजैक्शन कैन बी अप्रूव, उससे पहले कि विदड्रॉ पैसे निकालने के ट्रांजैक्शन अप्रूव हो, सिस्टम क्या डिटरमन करेगा, आइदर द सफिशिएंट फंड्स एग्जिस्ट इन द रिक्वेस्टेड अकाउंट, कि जो ट्रांजैक्शन विदड्रॉ फंड्स की कस्टमर करने जा रहा है उससे पहले सिस्टम चेक करेगा कि इनफ अमाउंट इसके अकाउंट में ऑलरेडी अवेलेबल है भी या नहीं है. फर्स्ट चेक ये करेगा, एंड द सेकंड चेक विल बी मैक्सिमम डेली लिमिट विल नॉट बी एक्सीडेड, कि जो उस अकाउंट की डेली ट्रांजैक्शन विदड्रॉ मनी की लिमिट्स है वो एक्सीड तो नहीं की गई. जैसे कि हर अकाउंट में ऑलमोस्ट आपकी जो डेली एटीएम विदड्रॉ मनी की लिमिट है, इन सम केसेस 25,000 है, और फॉर सम अदर बैंक्स इट्स 50,000. तो अगर तो वो चेक करेगा सिस्टम, अगर जो लिमिट है एक्सीड तो नहीं की, देन वो अलाउ करेगा कि वो विदड्रॉ मनी को कर सके. एंड देन there are sufficient it will also checks the sufficient funds are also available at the local cash dispenser, के जो कस्टमर मनी विदड्रॉ करने जा रहा है उसके पास वैलिड अकाउंट भी है, उसके अकाउंट में बैलेंस भी है, और उसकी अपर लिमिट एक्सीड भी नहीं की विदड्रॉ मनी की. द सिस्टम विल आल्सो चेक कि जो एटीएम मशीन है उसके कैश डिस्पेंसर के अंदर कैश भी मौजूद है या नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज आर द कंस्ट्रेंट्स which will be fulfilled for withdrawing money. So the next one is if the transaction is proved, अगर transaction approve हो जाए, जो requested amount है
डिस्पेंस से रिमूव कर दी जाएगी, अप्रूव कर ली जाएगी, एंड देन एक रिसिप्ट जनरेट की जाएगी जिसके ऊपर उस ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन माउंटेड होगी, एंड देन द कार्ड इज़ इजेक्टेड, एंड देन जो कार्ड होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, फॉल आउट कर जाएगा, वो कस्टमर को रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। सो बिफोर ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन अप्रूव हो, जो सिस्टम है इट विल डिटर्मन एटलीस्ट टू अकाउंट्स, डिटर्मन करेगा देर आर एटलीस्ट टू अकाउंट्स, एंड देन इट विल आल्सो चेक देर आर सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट टू बी डेबिटेड, कि जो हम फंड्स ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं अकाउंट में इनफ बैलेंस है भी या नहीं है, एंड देन वी सी दैट फॉर अप्रूव्ड क्वेरी एंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट्स रिसिप्ट इज़ प्रिंटेड एंड कार्ड इज़ गिवन बैक टू द कस्टमर। सो अ कस्टमर जो है हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है किसी भी टाइम पे कैंसिल भी कर सकता है, एंड देन दिस ट्रांजैक्शन इज़ टर्मिनेटेड, वो ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, एंड देन द कार्ड विल बी इजेक्टेड, एंड एट द लास्ट customer records type of different account records and debit card records, all of these kind of records will be maintained by the server, which is centrally located at the head office of the correspondent bank. So the next perspective is there is also an ATM operator जो एटीएम को क्लोज भी कर सकता है, अप भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है कैश को रीफिल करने के लिए, किसके अंदर, कैश डिस्पेंसर के अंदर, एंड ही कैन आल्सो परफॉर्म अ रूटीन मेंटेनेंस। सो वी कैन से दैट एन एटीएम ऑपरेटर कैन close and up down the ATM for the sake of replenish the ATM in the cash dispenser, and also for doing different kind of routine maintenance work. So we also here assume that functionality to open and close accounts and to create, update and delete customer and debit card record is basically provided by an existing system, and it is not part of this problem। कि जो हमारे पास हम यहाँ पे ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि जो क्लोज और ओपनिंग है अकाउंट्स की, अकाउंट्स क्रिएट करना, अपडेट करना, कस्टमर की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना, और डेबिट कार्ड का जो भी रिकॉर्ड है जो एग्जिस्टिंग, एंड देन हमारे पास डिलीट कस्टमर है, डेबिट कार्ड का जो रिकॉर्ड है जो एग्जिस्टिंग बैंक प्रोवाइड कर रहा है, वो जो सारा पार्ट है ये ऑपरेटर का रोल नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। कि ये जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, अकाउंट ओपन करना, क्लोज़ करना, हमारे पास कोई अकाउंट को क्रिएट करना, अकाउंट को ऑलरेडी अवेलेबल है अपडेशन करना, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना, या कोई भी डेबिट रिकॉर्ड्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के, ये जो सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये हमारा जो भी ये चीज़ें टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ये एटीएम ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। ये जो सारे टास्क हैं इटसेल्फ दीज रोल्स विल बी परफॉर्म्ड बाय सम काइंड ऑफ पर्सोनल्स इन द बैंक। ये जो सारे काम हैं, ये टास्क हैं, ये बैंक के अंदर किसी पर्सोनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस एटीएम सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों को मेंटेन करना। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास स्पेसिफिक, नाउ वी हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अब हम इस केस स्टडी से इन प्रीवियस 3 स्लाइड्स जो हमने केस स्टडी को का ओवरव्यू किया कि व्हाट द एक्चुअली द एटीएम सिस्टम इज़, कि एटीएम सिस्टम हमारे पास है क्या, एंड नाउ फ्रॉम दिस केस स्टडी वी विल ब्रेक डाउन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हम उस केस स्टडी से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स का ब्रेक डाउन करेंगे कि एक्चुअली व्हाट वी हैव इनसाइड द एटीएम case study. So here are the some specific requirements, and number one is, let's say we have some XYZ bank can have many ATM machines। उसकी कोई भी बैंक है XYZ, उसकी काफ़ी सारी ATM machines हो सकती हैं, और जो भी न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो ऑल ATMs के पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। एंड द सेकंड वन इज़ कि जो हमारे पास एटीएम जो सिस्टम है एटीएम का, वो कस्टमर को इनेबल करे, जो भी जिस भी बैंक की है, कि ही इट मस्ट हैव अ वैलिड एटीएम कार्ड टू परफॉर्म 3 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि कस्टमर 3 डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सके ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड एटीएम कार्ड्स। वैलिड एटीएम कार्ड में इट मस्ट हैव अ स्टार्टिंग डेट एंड द एंडिंग डेट, और कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो अभी भी रिमेनिंग हो, कार्ड एक्सपायर ना हो चुका हो, एंड इट मस्ट हैव अ वैलिड पिन कार्ड, उसका
पिन नंबर, कस्टमर के पास उस एटीएम कार्ड का वैलिड पिन नंबर भी हो और उसका पासवर्ड भी हो, और वो सिस्टम के एग्जिस्टिंग पिन नंबर से मैच भी कर रहा हो जो भी सर्वर साइड पे मेंटेन किया गया है. So these are different conditions which enable the ATM cards to become valid. So there are three different type of transactions which a customer can be performed. The first one is customer can withdraw funds, and the second one is the customer can query of account, query of balance, and the third one is the customer can send money or transfer money or funds from one bank account to another bank account in the same bank, in the same city, or in a different city of different banks. So basically कस्टमर जो है थ्री तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकता है. पैसे निकाल सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है, या फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, और वो जो अकाउंट है सेम बैंक में भी हो सकता है या डिफरेंट बैंक्स में भी हो सकता है. एंड नाउ द थर्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम आवर केस स्टडी इज़ द एटीएम कार्ड यूजेज शैल बी कंसिडर्ड वैलिड. एटीएम का यूजेज है वैलिड कब कंसिडर किया जाएगा? इफ़ इट मीट द फॉलोइंग कंडीशन. एटीएम कार्ड को वैलिड होने के लिए फर्दर रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक डाउन किया गया. द फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी इशूड बाय एन ऑथराइज्ड बैंक. ऑथराइज्ड बैंक ने उसको इशू किया हो. एंड द सेकंड वन इज इट मस्ट हैव अ the card is used after the start date. It can't be used before the issuing date. And the date when the card, the start date means the date when the card was issued. स्टार्ट डेट से मुराद वो डेट जिस डेट को हेड ऑफिस ने कार्ड को इशू किया है. कार्ड उसके बाद ही यूज़ किया जा सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द कार्ड इज़ यूज बिफोर द एक्सपायरी डेट. द कार्ड जो है हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर उसकी एक्सपायरी डेट अवेलेबल है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द कार्ड. एंड द इन द डी सेक्शन द कार्ड मस्ट नॉट बी रिपोर्टेड स्टोलन और रिपोर्टेड बाय समवन कस्टमर ड्यू टू सम प्रॉब्लम हु हैव बीन इशूड दैट कार्ड. कि जो कार्ड है वो उसकी कोई भी गुम होने की या तो चोरी होने की रिपोर्ट ना की गई हो कस्टमर की तरफ से. एंड द लास्ट वन इज़ द कस्टमर मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट पिन नंबर और अ पासवर्ड विच मैचेस विद द सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिन नंबर. कि कस्टमर के पास वैलिड पिन नंबर भी हो, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हो जो मैच करे सिस्टम के एग्जिस्टिंग पिन नंबर के साथ. And now the next specific requirement for our case study is the system. जो हमारा सिस्टम है कार्ड को सीज कर ले, जब्त कर ले अगर वो कार्ड स्टोलन हुआ है या तो चोरी है या तो कस्टमर की तरफ से कोई भी उसकी रिपोर्ट की गई है. एंड द फिफ्थ वन इज़ द सिस्टम शैल आल्सो अलाउ द कस्टमर टू एंटर द करेक्ट पिन नंबर इन नो मोर देन 3 अटेम्प्ट्स और 3 टाइम्स. सिस्टम कस्टमर को अलाउ ना करे कि वो 3 बार से ज़्यादा पासवर्ड एंटर करने की ऑप्शन ना दे. सो इन केस ऑफ फेलियर द in failure to provide the correct pin number in 3 attempts, the system must confiscated the ATM card. अगर यूज़र फेल हो जाए 3 अटैम्प्ट्स में करेक्ट पिन नंबर प्रोवाइड करने में तो जो सिस्टम है उस एटीएम कार्ड को कन्फिस्केट कर लेगा, सीज्ड कर लेगा, जब्त कर लेगा. And now the next specific requirement under the ATM case study is the system shall also ask for the transaction type. कि वो transaction की type को भी पूछे after the satisfactory validation of the customer pin. कि after successful login होने के बाद वो customer से type of transaction पूछे, either he want to or she want to withdraw money or a query balance or want to transfer funds. So these are three different kinds of transactions. And now the eighth specific design requirement is the system shall give three options or three types of transaction can be performed. The first one is withdraw money, and the second is querying balance, and the last one is transfer of funds from one bank account to another bank account. And the ninth specific design oriented requirement is if अगर कस्टमर सेलेक्ट करे कि वो विदड्रॉ मनी के ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना चाहता है तो द सिस्टम शैल आस्क फॉर द कस्टमर टू एंटर अकाउंट नंबर एंड अमाउंट टू बी डिस्पेंस्ड. तो जो सिस्टम है वो कस्टमर से आस्क करे करेक्ट पिन नंबर, अकाउंट नंबर एंड जितनी भी अमाउंट ही और शी वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम द सिस्टम. एंड नाउ द नेक्स्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज़ कि विदड्रॉ ट्रांजैक्शन के लिए व्हाट द सिस्टम शैल डिटरमन. सिस्टम को क्या डिटरमन करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज़ द इनफ और सुफिशिएंट फंड एग्जिस्ट इन द रिक्वेस्टेड अकाउंट. कि जितने भी अमाउंट्स को विदड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है इनफ और सुफिशिएंट अमाउंट बैंक अकाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए.
एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि जो मैक्सिमम डेली लिमिट है इट शुड नॉट बी एक्सीडेड, को डेली लिमिट भी एक्सीड ना हुई हो। आपने ऑलरेडी डेली लिमिट अगर 50,000 है तो आपने वो क्रॉस ना की हो, यू मस्ट बी underlying in this limit. And the last one is if we can say that there are sufficient available at the local cash dispenser, कि इसका क्या मतलब, बिफोर द विदड्रॉ मनी ये भी कंपलसरी है कि जो एटीएम सिस्टम का कैश डिस्पेंसर है उसके अंदर कैश का होना भी कंपलसरी है बिफोर वी फुलफिल द विदड्रॉल ट्रांजैक्शन। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अगर हमारे पास विदड्रॉ की ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए तो जो रिक्वेस्टेड अमाउंट है कैश की, द सिस्टम विल डिस्पेंस कर देगा उसको, फ्लो आउट कर देगा थ्रू टुवर्ड्स द कस्टमर। सो इट दिस रिक्वायर डिज़ाइन ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फर्दर डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ कि जो सिस्टम है शेल प्रिंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन, कि जो सिस्टम है वो एक रिसिप्ट प्रिंट करेगा जिसमें कि जो ट्रांजैक्शन की अबाउट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, एंड द कार्ड विल बी इजेक्टेड और टर्न आउट टू द कस्टमर। एंड द सेकंड वन इज़ व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी प्रिंटेड ऑन द रिसिप्ट, रिसिप्ट के ऊपर जो जनरेट की गई है एटीएम ने, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी माउंटेड और रिटर्न, उसके ऊपर क्या लिखा हो सकता है। जो भी हमें रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है आफ्टर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है, ट्रांजैक्शन टाइप हमने क्या की है, अकाउंट अमाउंट विदड्रॉ कितनी अमाउंट हमने निकाली है, एंड लास्ट वन द रिमेनिंग अकाउंट बैलेंस। दिस फोर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन द प्रिंटेड रिसिप्ट प्रोवाइडेड बाय द एटीएम सिस्टम। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज 12th डिज़ाइन ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट। अगर कस्टमर क्वेरिंग बैलेंस की ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करे तो द सिस्टम आस्क द कस्टमर टू एंटर द अकाउंट नंबर, वो अपना अकाउंट नंबर एंटर करता है बिफोर ही और शी वांट टू क्वेरिंग द अकाउंट बैलेंस। अगर क्वेरिंग अकाउंट बैलेंस की ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए तो सिस्टम देन बट डिड इट एक्चुअली प्रिंट अ रिसिप्ट एंड इजेक्ट द कार्ड, एंड इट दिस is further divided into detailed design requirement. The information combined on the receipts include जो भी receipts customer को provide की गई है, what kind of information it will contain. It must have a transaction number, transaction type, and the account balance available. And now the next design oriented specific requirement is अगर customer funds transfer की transaction को यूज़ करता है, and the system what the system shall prompt the customer to enter from where he or she want to send balance to what account number or what and how much amount he or she want to transfer. So अगर कस्टमर हमारा ट्रांसफ़र करना चाहता है डिफरेंट बैलेंस को, फंड्स को, ए फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, तो कस्टमर क्या एंटर करेगा, अपना अकाउंट नंबर जिधर से वो बैलेंस भेजना चाह रहा है, और destination account number and amount where he or she want to transfer the funds from one bank to another bank. And now the next one is the system shall check if there are enough funds available. System ये भी चेक करेगा कि enough funds available हैं कि नहीं भी हैं जिस अकाउंट से वो बैलेंस को सेंड करना चाह रहा है, किसको, अपने डेस्टिनेशन अकाउंट में। सो you can say that enough funds must be available in the from account which are being requested to transfer to the to account, कि कस्टमर अपने अकाउंट से जहाँ बैलेंस भेजना चाह रहा है बिफोर द सेंडिंग ऑफ बैलेंस, इनफ बैलेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेंडिंग account. So now the next specific requirement is अगर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स की ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए तो डेफिनेटली यह रिसिप्ट विल बी प्रिंटेड एंड द कार्ड विल बी इजेक्टेड, एंड दिस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डिटेल्स. द रिसिप्ट्स विल इंक्लूड द फोर थिंग्स: ट्रांजैक्शन नंबर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन is performed, amounts to be transferred, and the from and in which account that the amount is transferred, and the remaining account balance. All of these information will be printed on the receipt. And now the next one is the system can shall also cancel the transaction. जो system है कोई भी transaction को cancel भी कर सकता है,
like if the transaction is not completed, or like if the customer presses the cancel button. आप कोई भी ट्रांजैक्शन सिस्टम की ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर ये कंप्लीट नहीं हुई तब ही आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, या आप कैंसिल का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन द इनपुट कीपैड ऑफ द एटीएम सिस्टम। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि जो कस्टमर का रिकॉर्ड है, डिफरेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन है जो सर्वर साइड पे मेंटेन की गई है। तो is it's basically not the responsibility of the system। इस सारे को रिकॉर्ड करना सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टम शैल इनेबल एन एटीएम ऑपरेटर। जो सिस्टम है ये इनेबल करता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करता है एटीएम के ऑपरेटर को, सो ही और शी कैन शट डाउन और स्टार्ट अप एन एटीएम फॉर अ रूटीन मेंटेनेंस। जो एटीएम का ऑपरेटर है एटीएम को वो स्टार्ट भी कर सकता है, बंद भी कर सकता है मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए, लाइक डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए या कैश को रीफिल करने के लिए एटीएम सिस्टम के अंदर। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टम शैल इनेबल एन एटीएम ऑपरेटर टू ऐड कैश टू द कैश डिस्पेंसर। जो सिस्टम है वो ये भी इनेबल करता है कि जो एटीएम ऑपरेटर है एटीएम सिस्टम्स के कैश डिस्पेंसर के अंदर कैश को रीफिल कर सके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द जो सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है अकाउंट्स की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, या क्रिएशन, अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ डिफरेंट कस्टमर रिकॉर्ड्स एंड डेबिट कार्ड रिकॉर्ड्स के लिए। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ टास्क्स आर यूजुअली परफॉर्म एल्सवेयर बाय अ बैंक, not by the ATM system। So now the next one is the system shall be linked with the bank server। जो सिस्टम है वो बैंक सर्वर से थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी उसका हेड ऑफिस है बैंक का या मेन ब्रांच है, किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू उसके मेन सर्वर से कनेक्टेड होता है। सो इट इज़ विच आर यूजुअली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द करंट सिस्टम। और उसका स्कोप जो है करंट सिस्टम से यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है और उसके स्कोप से बियॉन्ड बाहर ही होती है। सो इट इज़ आल्सो एज्यूम्ड दैट दिस फैसिलिटी इज़ आल्सो ऑलवेज अवेलेबल। कि ये जो हमारे पास फैसिलिटी है ऑलवेज अवेलेबल है, कि जो हमारे पास एटीएम का सिस्टम है वो प्रॉपरली लिंक्ड किया गया है बैंक के मेन सर्वर से थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल लाइक इंटरनेट। किसी इंटरनेट के थ्रू जो एटीएम है किसी भी पार्टिकुलर बैंक की किसी भी सिटी के अंदर, उसको हेड ऑफिस में मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड किया गया है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि दिस फैसिलिटी ऑफ लिंक्ड विद द बैंक सर्वर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू स्मूथली कैरी आउट द डेली ट्रांजैक्शंस। सो द नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टम शैल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द एटीएम और नेटवर्क फैसिलिटीज़। कि सिस्टम हार्डवेयर डिवाइसेस की जितनी भी मेंटेनेंस के लिए हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस की मेंटेनेंस के लिए जो सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या जितनी भी नेटवर्क की फैसिलिटीज़ हैं इट्स अ सेपरेट वर्क, वो हार्डवेयर इंजीनियर्स का सेपरेट काम है। ये सिस्टम की इट्स सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हार्डवेयर डिवाइसेस की भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। एंड नाउ टिल हेयर वी डिस्कस our ATM automated teller machine case study। we discuss briefly what actually ATM system हमारे पास है क्या। then we ब्रेक डाउन द स्पेसिफिक डिज़ाइन ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स। तो हमने डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में अपनी एटीएम की केस स्टडी से तमाम रिक्वायरमेंट्स को इनसाइट्स ब्रेक डाउन किया। सो बेसिकली व्हाट आर द प्री कंडीशंस, व्हाट आर द पोस्ट कंडीशंस, कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स नीड टू बी परफॉर्म्ड। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवार्ड्स, अब हम मूव कर रहे हैं कि इस एटीएम एग्जाम्पल से, एटीएम की ओवरऑल केस स्टडी से, इन स्पेसिफिक डिज़ाइन ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट से जो अभी हमने जनरेट की, डिस्कस भी की बहुत डिटेल में, इन तमाम डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स को लेते हुए अब हम आगे विद द हेल्प ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वी विल प्रोवाइड द यूज़ केस मॉडलिंग फॉर एटीएम। द फर्स्ट वन इज़ यूज़ केस मॉडलिंग। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि यूज़ केस मॉडलिंग क्या है। बेसिकली एज वी डिस्कस अर्लियर, यूज़ केस प्रोवाइड एज द एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सिस्टम। In external view of the system we actually discuss the functionalities of the system, and this use case acts as the contact between the developer and the customer, what the system will actually performs, कि system actually कौन कौन सी functionalities provide करेगा। So in here from our previous
break down structure of design oriented requirements from the ATM case study, we see that the customer can perform three basic functions. The first one is view account balance, and the second one is withdraw cash, and the last one is deposit funds. So हमने देखा कि जो ATM की केस स्टडी के अंदर कस्टमर तीन तरह की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है। अपने अकाउंट के बैलेंस को क्वेरी कर सकता है, व्यू कर सकता है, कैश को विदड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स को डिपॉजिट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक. So basically these are three functionalities provided by this ATM case study. So so basically these three functionalities are three use cases. View account balance is one use case, withdraw cash is second use case, and deposit fund is third use case. So basically each use case describes a typical scenario for which the user use the system. हर use case हमें ये provide करता है, एक scenario case study provide करता है कि इसको use करने के लिए system कौन कौन से steps से गुजर कर functionalities को perform करके इस common goal को, इस task को, इस use case के through achieve करेंगे. So let's discuss. So now here we are going with taking the example of first use case which was the withdraw money. यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं कि विदड्रॉ मनी के यूज़ केस को, कि अकाउंट से मनी को विदड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशन से गुजर कर हम विदड्रॉ मनी के यूज़ केस को प्रोसेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द विदड्रॉ मनी. So before withdraw money, what kind of preconditions must be fulfilled? So the first one is the system will display the account types available to the withdraw from the user indicates a desired type. System सबसे पहले account types बताएगा कि either आपका जो account है current account है या saving account है. After selecting the account, the system will ask for the amount to be withdraw and user specified it. अकाउंट चेकिंग के बाद पिन मांगेगा, पिन के बाद जो कस्टमर है वो क्या करेगा, अमाउंट एंटर करेगा जो भी वो विदड्रॉ करना चाहता है. नेक्स्ट उससे आगे द सिस्टम क्या करेगा, यूज़र अकाउंट से वो पैसे डेबिट्स कर देगा एंड डिस्पेंस द मनी, और वो पैसे बाहर निकाल देगा कस्टमर को. एंड देन यूज़र क्या करेगा, पैसों को रिमूव मनी फ्रॉम द ATM, और सिस्टम प्रिंट कर देगा रिसिप्ट को, और यूज़र रिसिप्ट को रिसीव कर लेगा कैश रिसिप्ट से. एंड देन सिस्टम क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा क्लोज मैसेज को, एंड द ATM कार्ड विल बी इजेक्टेड. तो ATM कार्ड वापस इजेक्ट कर दिया जाएगा और सिस्टम क्लोजिंग मैसेज डिस्प्ले कर देगा ATM के इंटरफेस के ऊपर. एंड द लास्ट वन इज़ आफ्टर द यूज़र रिमूव्स और इजेक्टेड हिज और हर कार्ड. जब जो यूज़र है अपना कार्ड रिमूव कर लेगा, द सिस्टम विल डिस्प्ले द वेलकम मैसेज फॉर द न्यू वन कमर वेटिंग इन द क्यू. तो सिस्टम क्या करेगा, कार्ड रिमूवल के बाद डिस्प्ले मैसेज को विद द नेम ऑफ वेलकम मैसेज डिस्प्ले कर देगा न्यू कस्टमर के लिए कि नाउ दिस सिस्टम इज़ रेडी टू provide services to the next user. So let's discuss this use case with the template as well. So here the use case template you can see that provided by the Cockburn is a basic use case template. You can see that. So for each use case, in this template you can see that we have a specific use case number, the name of use case, the summary of use case, what the use case is actually doing, priority of the use case is high or low is mentioned, specific preconditions to fulfill this use case, specific post conditions which must be fulfilled by this use case. uh, Two different kind of actors, primary actors and the secondary actors will be discussed, and the trigger of different events to achieve the main task or main goal of this use case. Different steps and actions need to be needed will be discussed in main scenario, and then there's the extension part, and then there are different issues. So let's discuss all of these things one by one. Now here you can see that यूज़ केस का नंबर विल बी सम यूनिक यूज़ केस नंबर होगा, और यूज़ केस का नेम है कोई भी, आपने जैसे विद ड्रॉ मनी है ये एक यूज़ केस का नेम है. समरी के विद ड्रॉ मनी में हम एक्चुअली कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे, एंड इन प्रियोरिटी हमारी इस यूज़ केस की प्रियोरिटी हाई है या लो है. वन indicates the lowest priority and the 5 indicates the highest priority. And then there are some preconditions. Preconditions means कि हमें कौन सी conditions को fulfill करना है before द एग्जीक्यूशन ऑफ यूज़ केस को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कौन सी प्री कंडीशंस को मीट करना है. एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज पोस्ट कंडीशन. एंड इन दिस पोस्ट कंडीशन
व्हाट विल बी ट्रू आफ्टर द यूज़ केस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, यूज़ केस के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी कौन सी कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए, दीज आर डिस्कस्ड इन द पोस्ट कंडीशन। एंड देन देर आर टू थिंग्स, प्राइमरी एक्टर एंड द सेकेंडरी एक्टर। उनके नेम यहाँ पर आएंगे कि प्राइमरी एक्टर क्या है और सेकेंडरी एक्टर क्या है। लेट्स डिस्कस। एक्टर क्या होता है, एनीथिंग और एनीवन विद बिहेवियर, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो कोई भी टास्क परफॉर्म करता है किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके, उसको कहते हैं एक्टर। जैसे आप एटीएम की यूज़ करने के लिए जाते हैं एटीएम सिस्टम के पास, एटीएम बूथ में, तो जब आप एटीएम को के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आप एक्टर हैं और आप हैं प्राइमरी एक्टर। सो बेसिकली प्राइमरी, देर आर टू काइंड ऑफ एक्टर्स, प्राइमरी एक्टर एंड सेकेंडरी एक्टर। प्राइमरी एक्टर हमारे पास क्या होता है कि स्टेक होल्डर क्या है, स्टेक होल्डर एनी वन और एनी बॉडी हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सिस्टम इज़ कॉल्ड स्टेक होल्डर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी एक्टर के अंदर हमारे पास जो स्टेक होल्डर होते हैं वो इनिशिएट करते हैं इंट्रैक्शन को सिस्टम के साथ किसी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, उसको रोल भी बोलते हैं। जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हैं, आप विदड्रॉ मनी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपका गोल क्या है, विदड्रॉ मनी, और आपका वहाँ पे रोल क्या है, प्राइमरी एक्टर का। एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एक्टर। तो सेकेंडरी एक्टर जो हमारे पास है सिस्टम को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो मोस्टली ये पर्सन नहीं होता। तो हमारे केस में बैंकिंग, इसमें एटीएम की केस स्टडी में हमारे केस में सेकेंडरी एक्टर कौन है, द सर्वर ऑफ द बैंक। जो बैंक का मेन सर्वर है या मेन डेटाबेस है, एक्चुअली दिस डेटाबेस और दिस सर्वर इज़ अ सेकेंडरी एक्टर। एंड नाउ डिस्कस द ट्रिगर। बेसिकली ट्रिगर हमें बताता है कि डिफरेंट एक्शंस डेट काज द यूज़ केस टू इन्वोक्ड, कि कौन कौन से एक्शंस हैं, सिनारियोज हैं जिनकी मदद से हम यूज़ केस को इन्वोक करते हैं। मेन सिनारियो के अंदर हम वो डिफरेंट स्टेप्स, एक्शंस बताते हैं जो डिफरेंट, जैसे विदड्रॉ मनी है, विदड्रॉ मनी करने के लिए आपको कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। वैलिड कार्ड हो, इनपुट हो, अब आप उसको करें, वैलिड पिन नंबर दें, डिफरेंट अकाउंट्स सेविंग या करंट में से अकाउंट में से सिलेक्ट करें, अपना सेलेक्ट करने के बाद इनफ अमाउंट एंटर करें। सो दीज आर ऑल स्टेप्स टू परफॉर्म अ यूज़ केस। तो ये तमाम स्टेप्स हैं जिनको परफॉर्म करके आप किसी यूज़ केस की फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। एंड द नेक्स्ट पास इज़ एक्सटेंशन। सो नाउ व्हाट इज़ द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज़ हमारे पास क्या है, तो एक्सटेंशन हमारे पास किसी भी यूज़ केस के अंदर कोई अल्टरनेटिव पाथ्स होते हैं जो हमारे पास ऑप्शनल भी होते हैं। जो हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं ऑप्शनल पास भी हो सकते हैं, इसके ऊपर हम एरर्स को भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये एरर्स भी हो सकते हैं। तो इसको यूएमएल के अंदर ऐसे एक्सटेंड के साथ एंगल ब्रेसिस से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट वन, देयर कैन बी डिफरेंट ओपन इश्यूज विल बी अवेलेबल इन द यूज केस। सो लेट्स डिस्कस। सो हेयर ऑल ऑफ द information is available about the use case specification template प्रोवाइडेड बाय द कोकबर्न बेसिक यूज़ केस टेम्पलेट। तो ये हमारे पास यूज़ केस का टेम्पलेट है। तो किसी भी यूज़ केस, जो हमारे पास बेसिकली 3 यूज़ केसेस हैं, विदड्रॉ मनी का, क्वेरी बैलेंस करने का, और लास्ट वन फंड्स ट्रांसफ़र का। तो उन तमाम यूज़ केसेस के लिए हम इस यूज़ केस टेम्पलेट को देखेंगे कि हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो सो लेट्स डिस्कस विद द विदड्रॉ मनी। सो यहाँ पर हमारा जो यूज़ केस टेम्पलेट है जो हमने पीछे देखा, तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि विदड्रॉ मनी के यूज़ केस के साथ कैसे इसको हम मर्ज करेंगे। सो फर्स्ट वन, जैसे कि मैंने कहा था, देयर विल बी अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ दिस यूज़ केस, वी मेंशन विदड्रॉ मनी यूज़ केस विद द नंबर 1। एंड व्हाट्स इज़ द नेम ऑफ यूज़ केस का नेम क्या है, इट्स अ विदड्रॉ मनी। सो व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन बिहाइंड द विदड्रॉ मनी की समरी क्या है कि ये क्या टास्क परफॉर्म करता है। तो इन विदड्रॉ मनी यूज़र कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम हिज और हर अकाउंट, कि यूज़र जो है विदड्रॉ मनी से अपना बैलेंस जो है निकाल सकता है। एंड व्हाट अबाउट द प्रियोरिटी, हमारी इस विदड्रॉ मनी के यूज़ केस क्या है, वी सेट इट टू 5। इट मीन्स इट्स प्रियोरिटी इज़ हाईएस्ट। 1 मीन्स लोएस्ट एंड टुवार्ड्स 5 मीन हाईएस्ट प्रियोरिटी। एंड व्हाट इज़ द प्री कंडीशंस टू विदड्रॉ मनी, के लिए हमारे पास प्री कंडीशन क्या होगी कि अगर यूज़र पैसे निकालना चाहता है तो उसकी प्री कंडीशन भी तो होगी कि यूज़र जो है लाजमी एटीएम के अंदर लॉगिन हुआ होगा तो ही मनी को विदड्रॉ कर सकता है। एंड इसके लिए पोस्ट कंडीशन क्या है कि जब यूज़र मनी को विदड्रॉ कर ले तो वो एक रिसिप्ट भी रिसीव करे कि जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो इट्स बेसिकली अ पोस्ट कंडीशन। एंड हमारे इस यूज़ केस के अंदर, विदड्रॉ मनी के यूज़ केस के अंदर, प्राइमरी एक्टर कौन है, बैंक का कस्टमर।
जो एटीएम बूथ में जाके एटीएम के साथ इंटरेक्शन करके विदड्रॉ मनी के गोल को या यूज़ केस के प्रोसेस को अचीव कर रहा है. एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी एक्टर इन द विदड्रॉ मनी? सो कस्टमर अकाउंट्स डेटाबेस इज़ द सेकेंडरी एक्टर. एंड एज आई सेड अर्लियर, कस्टमर सेकेंडरी एक्टर ऑलवेज नेवर अ पर्सन. ये मोस्टली पर्सन नहीं होता हमारे पास. इन हम आवर केस इट्स कस्टमर्स अकाउंट डेटाबेस विच इज़ एक्चुअली रिजाइड्स इन द हेड ऑफिस ऑफ आवर बैंक. एंड द नेक्स्ट इज़ ट्रिगर. तो यूज़र को विदड्रॉ मनी के लिए कौन कौन से मेन सिनारियोज में कौन कौन स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं? सो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स व्हेन द यूज़र वांट्स टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम हिज और हर बैंक. यूज़र को विदड्रॉ मनी के लिए कौन कौन से स्टेप्स से गुजरना पड़ते हैं? लाइक सिस्टम पहले डिस्प्ले करेगा अकाउंट के टाइप्स को, अकाउंट टाइप्स को चूज़ कर लेगा, देन आस्क फॉर अमाउंट टू ड्रॉ. यूज़र उसकी अमाउंट एंटर करेगा एंड देन जो अकाउंट है वो डेली लिमिट चेक करेगा और कैश को डिस्पेंस कर देगा, यूज़र मनी को रिमूव करेगा, सिस्टम प्रिंट्स करेगा एंड सो ऑन. सो हेयर फ्रॉम 1 to 10 ऑल ऑफ दीज 10 स्टेप्स आर रिटन टू अचीव द विदड्रॉ मनी यूज़ केस. So the next path is extension. As I said earlier, extension mean कि different optional paths हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं. So let's see in this withdraw money use case what kind of extensions we have. हमारे पास कौन कौन सी extensions हैं कि अगर सिस्टम नोटिफाई करे, अगर नोटिफाई कैसे करे, अगर यूज़र के अकाउंट में इनफ सफिशेंट बैलेंस ही नहीं है और विदड्रॉ करना चाह रहे तो ये नोटिफाई करना क्या है? एक्सटेंशन है. फर्दर ऑप्शनल डिटेल्स हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ जो सिस्टम है वो करंट बैलेंस गिव करेगा, आपका करंट बैलेंस इतना है और आप कितना एग्जीक्यूट या विदड्रॉ करना चाह रहे हैं, और सिस्टम में एग्जिट का ऑप्शन भी. सो ऑल ऑफ दिस थ्री आर ऑप्शनल पाथ्स which actually represents the extensions. And the last one is the open issue. So basically there can be different issues like should the system ask if the user want to see the balance. जैसे डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं कि सिस्टम जो है आस्क कर यूज़र को कि यूज़र जो है वो बैलेंस को देखना चाहता है या नहीं चाहता है. इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं. सो बेसिकली इट इज़ द बेसिक टेम्पलेट ऑफ यूज़ केस विच वी सी हेयर for the withdraw money. So for the it is your responsibility now. अब आपका यहाँ पर काम ये है कि you have to fill this template for remaining two use cases. The second one is for querying balance and the third one is funds transfer. अब स्टूडेंट्स इसी तरह जैसे मैंने आपको विदड्रॉ मनी के अगेंस्ट यूज़ केस के इस टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन को फिलअप करके दिखाया है फ्रॉम design specific requirements which we break down in early slides. You also have to from these breakdowns of design oriented specific requirements, you have to fill this use case template for two remaining use case, the funds transfer use case and the query balance use case. Now till here our lecture is ended.